but I'll try my best. Because the next two people coming up, I can safely call them as my friends. But the good part is that there is a public shark and a private shark that are coming up. Both of them are CEOs of two amazing asset management companies. I have my SIPs in both of their funds. And it's an absolute delight to welcome in Radhika Gupta and Ashish Somaya for the next session. And I may Khotunat Kayu, right? Radhika was saying that, you know why? I mean, I'm the CEO of Edelweiss AMC. So let's do that. But Radhika, I'm sorry. I hope all is okay. Please sit. Thank you so much, both. Please sit. But we can almost say that અત્યારે આપણે આ behavioral bias session કરી એની જગ્યાએ I must tell you, if any of you have a startup idea, maybe we can do 5 pitches here and get the two of them to judge which pitch is the best and which pitch is not. Do you want to do that, guys? No, as I said, a public shark and a private shark. No, I'm just kidding. But yeah, at some point of time, you guys should try and figure out how you can make pitches to both of them, because they are very astute private investors, in addition to the fact that they shoulder the responsibility of running two of the finest asset management companies in the country. I'm sure I don't need to introduce them more, because તમે લોકો એને બહુ જાણતા હશો, એમના ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હશે. And the reason why we thought we'll do this session of behavioral biases is because you meet so many people, right? Investors across the country, investors in your funds, and try and know, okay, yeah, these are the biases that creep in when markets are at lows, markets are at highs, etc. What, to your mind, are amongst the most common biases that face an Indian investor and any investor? And what would you think when you first hear about these biases? Do you get surprised? For example, कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? We can do Hindi, English, Gujarati, whatever. Either of you can start. Okay, can I start with a disclaimer, because Sure. I am a mutual fund CEO और हम लोग हर चीज disclaimer से ही शुरू करते हैं. मुझे गुजराती नहीं आती. Completely fine. You will. We'll do Hindi. Every time I come to Gujarat, मुझे लगता है I'm the only person जिसको गुजराती नहीं आती. मुझे गुजराती पूरी तरह से समझ आती है, लेकिन हिंदी, English is all I understand. नहीं तो bias हो जाएगा. Completely fine. Yeah, we'll start with that. Start in Hindi. Start in Hindi. So biases की list तो लंबी है, but let me start with one and maybe Ashish can kick off. And मुझे bias का question हमेशा थोड़ा बुरा लगता है, because I feel कि हम लोग stage पे बैठ के investors को उनके behavior के लिए कर्ज करते हैं, but as I heard गोविंद भाई, वो biases हम सब में होते हैं. So you know, this is not me sitting and saying things, but I think ये जो recent tendency है that has been exacerbated by social media and all the digital platforms is this obsession with पिछले 1 साल में क्या रिटर्न मिला है. अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ. आजकल क्वाइट फ्रैंकली ना कोई डेट की बात कर रहा है, ना कोई इक्विटी की बात कर रहा है. एक एसेट क्लास है जिसकी सब बात कर रहे हैं, उसका क्या नाम है? गोल्ड एंड सिल्वर. फ्राइडे को सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में. So 3 years ago, we launched a product in the industry, which was a 50-50 gold and silver fund. Which is a very stupid product. It was 50-50 gold and silver. जब हमारी टीम प्रेजेंटेशन बना रही थी उसके पास्ट रिटर्न्स इतने बुरे लग रहे थे, they said, मैडम प्रेजेंटेशन में डालने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं. Which is actually what happened. It was launched on my birthday for some reason, 14th September 2022. We raised 12 crores in the NFO. 12 crores in the NFO. In the last week, every day we get 25 crores. Every day. And we're not asking for it. This is the bias, because the last 1 year returns are 67.5%. Okay. So well, टेक्निकली अगर NFO अब लॉन्च हुआ होता तो बहुत फायदा होगा, बट जिन्होंने 12 करोड़ पहले डाल दिए वो बहुत खुश होंगे. वो बहुत खुश है, बट आई विश कि वो 12 करोड़ लोग होते या 12 लाख लोग होते, 12 लोगों ने पैसे डाले होंगे, आई थिंक. सो आई थिंक दिस ऑब्सेशन विद what has done well in the last 1 year, because it shows up on digital platforms, it shows up on WhatsApp groups,
And the media, and I know you come from the media, वो भी आर्टिकल लिखते हैं Edelweiss Gold and Silver Fund is offering 67% returns. It is not offering, it has offered. And it actually did not offer, it happened. So I think actually the approach should be the opposite. What is not selling today? आप लोगों को देखा राधिका कितनी स्मार्ट है. इन्होंने सोशल मीडिया बोल दिया, डिजिटल बोल दिया, आर्टिकल लिखा हुआ बोल दिया, टीवी नहीं बोला क्योंकि उनको पता है मैं टेलीविजन एंकर हूँ, तो मेरे सामने टीवी की बुराई नहीं कर सकती है. ओके, वैसे राधिका आप अब क्या लॉन्च कर रही हैं? मैं अभी कुछ नहीं लॉन्च कर रही. मैं अभी फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड SIF लॉन्च कर रही हूँ. मैं जब कुछ गोल्ड एंड सिल्वर जैसा, एंड बाय द वे नाउ आई गेट ईमेल्स, आई हैव गॉट 15 emails in the last 4 days saying launch a platinum and copper product. And by the way, SEBI regulations don't allow me to launch a platinum and copper product. But I think 3 years ago, nobody would have heard of platinum and copper. तब हम जब सिल्वर की बात करते थे तो लोग कहते थे सिल्वर तो इंडस्ट्रियल सी चीज है, आप गोल्ड पे ही टिके रही है. तब गोल्ड में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. ओके, आशीष, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग. बट आप कुछ बताएं अपने टॉप बिहेवियरल बायस के थॉट्स पे. ગુડ મોર્નિંગ. સો એકચ્યુઅલી બધા લોકોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જે બિહેવિયર બાયસીસની આપણે વાત કરીએ છીએ ને એનું ફોલો કરવું જોઈએ, ટ્રેક કરવું જોઈએ અને બીજા બધા લોકો કઈ રીતે વર્તન કરે છે એની પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એના બે તમને એક્ઝામ્પલ આપું. સૌથી પહેલી વાત શું છે કે આપણે ટીવી પર જોઈએ અને મીડિયા બી ફોલો કરીએ કે રીડ બી કરીએ કે જે બી ક્યાં પણ તમે રોજ સવારે ઘણા બધા લોકોનું ઇન્ટરવ્યૂ કરો છો, વેરી સ્માર્ટ પીપલ, IIT, IIM, રાઈટ. અને ટીવી પર કે ક્યાંય બી આપણે વાત કરીએ શેર બજારની તો નંબર્સ ચેન્જ થતા હોય, ગ્રાફ્સ હોય, ચાર્ટ્સ હોય અને રોજ તમારી સાથે એટલા સ્માર્ટ લોકો વાત કરે કે તમને લાગે કે ભાઈ આજે મારી સાથે વાત નહીં કરતો તો કદાચ રોકેટ ચલાવતો હોત ક્યાંક, રાઈટ. રિયલી સ્માર્ટ પીપલ, રાઈટ. તો બધું ફોકસ ઇઝ ઓન મેથ્સ, સાયન્સ, ઇકોનોમિક્સ, ફાઇનાન્સ, એની પર બધું શેર બજારનું બધું ડિસ્કાઉન્ટેડ કેશ ફ્લો, રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી, બધું એવરીથિંગ ઇઝ મેથેમેટિક્સ. And the people who speak to you every day are also almost like scientists and so many charts and numbers. પણ બધા લોકો એક ચીજ યાદ રાખવી જોઈએ કે આપણે ઇકોનોમિક્સની વાત કરીએ છીએ, અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીએ છીએ. બધા લોકોએ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે છેલ્લા 20 વર્ષમાં ઇકોનોમિક્સનું નોબેલ પ્રાઇઝ 2 કે 3 વાર હ્યુમન સાયકોલોજી સ્ટડી કરવા મને આપ્યું છે. અને કદાચ સાંભળ્યું બી હોય તો કેટલું મોટું કોન્ટ્રાડિક્શન છે એ કોઈને ખ્યાલમાં નહીં આવ્યું હોય. કારણ કે આપણને જે ઇકોનોમિક્સ ભણાવ્યું ને, द इकोनॉमिक्स विच वी हैव बीन टॉट, दैट इकोनॉमिक्स का फाउंडिंग अजम्पशन है कि ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल एंड लॉजिकल. मनुष्य हमेशा वही करेगा जो उसके लिए सबसे आसान होगा, जो उसके फायदे में होगा और जो उसके लिए कन्वीनियंट होगा, राइट. वेरेज साइकोलॉजी तो ह्यूमन के इमोशंस को स्टडी करता है. तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज साइकोलॉजी वाले को क्यों दिया? क्योंकि आफ्टर सो मेनी डिकेड्स पता चल गया है कि इकोनॉमिक्स इज फुल्ली ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशन, नॉट बाय ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड नंबर्स. तो पूरा का पूरा बायस है. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे राधिका ने बताया 1 year रिटर्न, इट्स ऑब्वियस. मतलब हम लोग सब लोग को, मेरे को एक बार किसी ने बोला था, माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हैड वेरी लार्ज एडवर्टाइजमेंट बजट्स, तो हम लोग बहुत एडवर्टाइजिंग करते थे. तो मेरे को एक बार किसी ने क्या बोला था मालूम है? कि तुम लोग सब लोग है ना, जब मार्केट तेजी में होता है ना तभी एडवर्टाइजमेंट करते हो. मैं उसको बोला, भाई मेरे, हमारा एडवर्टाइजमेंट हमेशा चलता है, मार्केट तेजी में होता है तब तू ध्यान देता है उसके ऊपर, समझा? तो this is the issue. And see, always remember one thing. There is a proverb in English, અને ગુજરાતીમાં કહેતા મને નથી આવડતું. There is a proverb in English which says that you have to shoot where the rabbit will be. जो राधिका ने बताया 1 year रिटर्न का, मतलब आप कोई शूट करने निकलना मत. एक आदमी मुंबई में बहुत तकलीफ में है, तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर आप खरगोश का शिकार करना है तो निशाना वहां पे साधना होगा जिस तरफ खरगोश शायद दौड़ सकता है. अभी अगर आपको गोल्ड खरीदने का है तो आप तो वहां पे निशाना बांध रहे हो जहां पे खरगोश 2 साल पहले था. लाइक अभी कल किसी ने ट्वीट किया कि ये सब म्यूचुअल फंड वाले पागल है, अभी जाके गोल्ड का बात कर रहे हैं. ऐसे भाई हम सब ने 2-3 साल पहले से बात किया, तू सुन अभी रहा है. नोटिस इट नाउ. हाँ, नोटिस इट नाउ. 2 साल पहले सब लोग को स्मॉल कैप ही खरीदने का था. अगर बोलेगा कि गोल्ड खरीदो तो बोलेगा पागल है ये आदमी, हम लोग का नुकसान करा देगा, राइट.
So I think the question is that people pay attention on the top. And actually, last example I'll give you, Mr. Buffett is the most famous investor. What is his most famous statement? Is his most famous statement that you should buy companies whose ROIC is so and so? His most famous statement is be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. अभी अपन ऑडियंस को पूछते हैं ये स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, बताओ मेरे को. अदर्स है ना. तो you should know what others are doing and then you should make sure you don't do that. लेकिन अभी सबको गोल्ड खरीदने का, तो क्या करेंगे? I have another equally tragic but more interesting story. ऐसे गोल्ड ऊपर और जा सकते हैं. By the way, I am not saying that. Govind bhai also said कि वो 50 का 100 that doesn't mean you sell it. थोड़े टाइम में जा सकते हैं. हाँ, We're just giving example. we're just giving examples, but I think ये ग्रीड और फियर का एक मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है. सो जब मैंने एडलवाइस म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया तो हमने म्यूचुअल फंड जेपी मॉर्गन से टेक ओवर किया और वो टेक ओवर में हमें कुछ फंड्स मिले. उसमें से एक फंड का नाम था एडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड. कुछ लोगों ने शायद सुना होगा. एट दैट पॉइंट वो मार्केट में अकेला फंड था बेचारा जो चाइना में इन्वेस्ट करता था, और तब तो वो भी माहौल नहीं था हिंदी चीनी भाई भाई एंड ऑल ऑफ दैट. डिफरेंट टाइम, माहौल बदल गया है, ट्रम्प आ गया है, लेट्स नॉट गो देयर. तो मुझे लोगों ने कहा आप ये फंड बंद कर दीजिए. तो फॉर सम रीजन आई वाज न्यू और मैंने बंद नहीं किया. नॉट माय इंटेलिजेंस. 18-19 में वो फंड इतना अच्छा किया क्योंकि 2018 इंडियन मिड कैप स्मॉल कैप्स डिडंट डू वेल. इनफैक्ट 2019 में एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, इट वाज नॉट यू, एक आर्टिकल लिखा कि एडलवाइस ग्रेटर चाइना फंड इज द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन म्यूचुअल फंड ओवर द लास्ट 10 years. आत्मनिर्भर और भारतीय होके कोई फायदा नहीं है, चाइना में पैसे डालने चाहिए थे. तो उसके बाद क्या हुआ, हर दिन हमारे कॉल सेंटर पे डायरेक्ट प्लान में लोग पैसे डालते जाते थे. इनफैक्ट अगर चाइना में चाइनीज न्यू ईयर आ जाता था और 7 दिन की छुट्टी होती है चाइनीज न्यू ईयर में, हमारे कॉल सेंटर पे कंप्लेंट आती थी और आशीष लोग कहते थे आज मेरा एनएवी नहीं बढ़ा, मेरी फीलिंग्स ठीक नहीं है. दिस एक्चुअली यूज्ड टू हैपन. फिर चाइना मार्केट में बहुत सालों तक करेक्शन आया, एंड पीपल यूज्ड टू टेल अस आपने चाइना फंड क्यों लॉन्च किया, इतना ओपेक मार्केट है. ठीक है, देयर वर सम वेरी स्मार्ट, कमिंग टू हिज पॉइंट अबाउट ग्रीड, वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर्स जिन्होंने 7 PE पे चाइना फंड में पैसे डाले, 7 PE. नाउ इफ यू लुक एट अ मार्केट जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो आपको 7 PE पे मिल रहा है, वो सस्ता है या महंगा है? दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट 7 PE, what is the margin of safety you have? Your Gujarati is reasonably smart. बहुत कम लोगों ने पैसे डाले. अभी चाइना का 1 year रिटर्न 54% है. अभी इतने पैसे आ गए हैं कि हमें वो फंड सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज करना पड़ रहा है. अब लोग कह रहे हैं आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? That's a good problem to have. It's a good problem to have, but the magic is the man who's made money, and I can't take the name. The people who made money are the people who invested at 7 PE when everyone else was saying buy China. So one of the biases that you guys see as the most obvious one के लोग पीक पे बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, ट्रफ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, and therefore the opposite should happen, right? Ideally, but audience, I would urge you कि ये जरूरी नहीं है कि 7 पे पैसा डाला तो पैसा बनेगा ही बनेगा. वो अंडरलाइंग भी अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो 90% लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो तो SIP चालू ही है, और जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं 7 पे PE पे ले न लें गलत स्टॉक को. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट थॉट आई विल मेक द डिस्क्लेमर, राइट? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट बायस? आशीष, आई विल स्टार्ट विद यू. यू सेड के 2 बायस हैं, आपने एक की तो बात कर ली राधिका के साथ, और कोई बायस दूसरा जो आपके हिसाब से बहुत प्रिवेलेंट है? See, I think obviously what we've been discussing is herd behavior and your inability to be counter-cyclical. That is most important. Second thing मैंने क्या देखा है कि जैसे हम लोग कई बार ऐसे चर्चा करते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है मार्केट में, those kind of things. Now generally what I have seen is that कि समझो कि people have started investing, let us say in 2024, okay? So 23-24 आपने देखा होगा बहुत सारा पैसा went into small cap, right?
and lot of money went into thematic funds and sector funds also. So one of the things I have noticed is that के एक जगह पे समझो पैसा डाला, correct? And then let's say that segment of the market falls very sharply. So जब market गिरता है ना, तो लोग नाराज होते हैं, पैसा निकालते नहीं है, उसके ऊपर टॉप अप भी ज़्यादा नहीं करते हैं. But the moment, let's say if 100 becomes 80, you will get lot of, you will get lot of anxiety, you will get lot of questions. But when 100 goes from 80, तब तक ठीक है, upset है खाली. The moment 80 goes to 100 या 101, फिर you will start getting redemption. तो let's put it differently. समझो कि हम लोग मुंबई में या गुड़गांव में, हैदराबाद में, यहाँ पे भी let's say lot of time you go to one स्काई स्क्रेपर होता है ना बिल्डिंग में, और मुंबई में तो बहुत ही कॉमन है कि लिफ्ट में एंटर करने के लिए भी लंबा लाइन लग गया है, करेक्ट? तो आप लाइन में खड़े हैं, आपका चांस आया, आप लिफ्ट के अंदर चले गए, तो कोई पता चल जाना, अरे बाबा ये तो नीचे जा रहा है. समझो आप गए क्योंकि आपको 40th फ्लोर पे जाने का है. जब आप अंदर गए तो पता चला लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो नीचे गया लिफ्ट, आपको बोला ठीक है ना, जाएगा ऊपर, बैठते हैं. फिर वो बेसमेंट 1 2 3 में गया, थर्ड बेसमेंट में आके समझो बत्ती गुल हो गया, लाइट बंद, पावर आउट हो गया. अभी आप 2 मिनट के लिए थर्ड बेसमेंट में 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए लिफ्ट, अंधेरा हो गया, लिफ्ट बंद हो गया, तो आपको घुटन होएगा ना, वो 1 मिनट आपको 10 मिनट लगेगा ना, इट विल बी द लॉन्गेस्ट 1 मिनट यू वुड हैव एवर स्पेंट. फिर वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हुआ, जो भी हुआ समझो, लिफ्ट चालू हुआ, फिर से चालू हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया. अब मेरे को आपको एक सवाल पूछने का है, समझो सब लोग को 40th फ्लोर पे जाने का था, सब लिफ्ट में गए, बेसमेंट 3 में अटके, थोड़े टाइम के बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आया, तो इधर कितना लोग ऐसा है जो बोलेगा हाँ ठीक है चलो बाबा अभी अपन 40th फ्लोर पे जाएंगे, और कितना लोग ऐसा है दरवाजा खुलते ही बोले आज के हो बे ना, अभी कुछ नहीं आएगा, नहीं अभी घर पे जा रहा है. व्हाट डू यू थिंक? सो मुंबई में है ना, जैसे गोरेगांव से चर्चगेट आप जाते हैं ना, तो सुबह सुबह गोरेगांव से चर्चगेट जाना बहुत मुश्किल है. कभी कभी उल्टा प्लेटफॉर्म पे जाके बोरीवली का ट्रेन पकड़ के वापस जाना चाहिए, जाना पड़ता है, उतना मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए. बट व्हाट विल हैपन, मोस्ट पीपल दे फील के मार्केट शुड रिस्पेक्ट देयर एंट्री प्राइस. बेचारा मार्केट को नहीं मालूम है ना तुम कौन से एनएवी में आया है, तो जा सकते हैं नीचे. सो मोस्ट पीपल विल रिडीम एट 100. आई एम टेलिंग यू. आप देखो अभी थोड़ा टाइम मार्केट चलेगा ना, तो पहले रिडेम्पशन आएगा. और कहाँ से रिडेम्पशन आएगा? जहाँ पे लोगों ने 2023-24 में डाला है, वहां से रिडेम्पशन आएगा. और समझो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू टेक एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा. अभी दीज आर जस्ट एग्जांपल, दिस नॉट अ रिकमेंडेशन. सो व्हाट विल हैपन इज दैट if you put money in say all these thematic funds, let's say some of them are down 15%, when it recovers redemption aayega. Sure. Okay, and money will again go into, right, like कार का वाइपर होता है ना, वैसा इधर पानी गिरा तो इधर जा रहा है, इधर पानी गिरा तो इधर आया, कंटिन्यूसली ऐसा चलते रहेगा. So that is a big challenge. People can't they lose conviction. मतलब अगर NAV ऊपर जा रहा है ना, तुम भी अच्छा आदमी है, मैं भी अच्छा आदमी, सब ठीक है, मेरे को तुम्हारे पे पूरा भरोसा है. अगर NAV ऊपर जा रहा है तो NAV नीचे आया ना, तो कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी ठीक नहीं है. No, NAV भगवान छे. This is the little Gujarati I know. I told my fund managers वो also. तो बराबर है. NAV ही भगवान. NAV is the only भगवान. भाव भगवान चे is well transcribed and भाव described. भगवान छे is basically about efficiency and the respect for the market. Okay, there's a difference in there. This is There's a difference because You're right. NAV के पीछे क्या है वो कोई नहीं देखता. NAV क्यों भगवान छे? NAV के पीछे क्या है? see भाव भगवान छे is a humble statement, right? But this NAV नीचे गया तो मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है. It's Yeah. about your, I mean in our business market is cyclical. I think trust is most cyclical. Yeah, agree. But hey guys, you can't. But the last 18 months, I mean, or 24 months or 36 months, let's say, ever since COVID has happened, yeah, we have to appreciate that the Indian investor has largely stayed the ground, or at least on the SIP front, right? The last few instances notwithstanding. By the way, Radhika, before I come to you, sorry, just one follow-up to Ashish, because, and maybe both of you can opine, क्योंकि ये we are guilty of it as news channels, कि जैसे ही वो SIP flows आते हैं ना monthly, हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये monthly में इतना हो गया, ये इतना हो गया. हमारा काम भी है, to be honest. नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे क्यों नहीं दिखाया. You are calling every month, so we are working harder. के नीरज को बोलेंगे क्या हम लोग? What problem is
can I take your case? You are not Please only do. displaying it, you are cynical of it. A section of media calls every month and they're like, SIP book. And I have seen this since the industry's SIP book was 4,000. Okay, Ashish, you are older than me, so I don't want to say I your was age. there when it was Okay. So, but I joined in 2017 when it was 4,000, 5,000, 10,000, etc. Every month. And I have stopped attending any media's invitation to talk about SIP flows because I'm tired of you guys. But आप लोग फोन करके पूछते हो कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ा, देश बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है. It is like media is waiting for SIP book numbers to fall. तो मेरी ये आपसे शिकायत रहेगी. The media is actually waiting for the number to hit 1,50,000. I To am be very honest. No, I am giving you a prediction that in 2030 that number will be 1 lakh a month. You will have a 1 lakh SIP book a month. I'm saying this here. Perfect. Amazing. So well, that's the backstop that the Indian markets have, right? कि अगर Indian local investor consistently invest करते रहता है, तो जैसे गोविंद भाई ने बोला कि हमें FI की जरूरत नहीं है. I mean literally नहीं, but इतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी. But ये you guys are saying कि चलो let's say we are guilty of doing it और हम तो कुत्ते के पूछे हम करते रहेंगे. But ये monthly SIP flows अगर numbers कभी इधर उधर हो जाते हैं, Yeah. so investors को इससे कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस निकालने नहीं चाहिए, राइट? See, yeah, please. Go ahead. No, please, please. See, idhar udhar is a very strange word, right? I think structurally, because idhar udhar mein In strange times, No, no. Radhika, there is Idhar Donald udhar- Trump out there. Okay. So there is a middle path here, right? Structurally मुझे लगता है ये SIP नंबर ऊपर ही ट्रेंड करेंगे बिकॉज जो फाइनेंशियलाइजेशन है, जो शिफ्ट है आपका फिजिकल एसेट से लेके फाइनेंशियल एसेट तक, वो रियलिटी है. मैं अपने ऑफिस में एक सिंपल एक्सरसाइज करती हूँ, यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड वी टिपिकली कॉल आवर टीम्स एंड आई डू अ कॉन्वर्सेशन. तो हमने अपने ऑपरेशंस टीम को बुलाया है एंड वी हैव पीपल इन देयर 20s, देयर 30s एंड 40s. सो वी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि भाई पहली पगार के साथ किया क्या. नाउ anyone who's in their 40s or late 30s typically says, yaar, acha mummy ko diya, and after all that sweet stuff, they say, acha RD ki. Then the people who are 20 are like, ये RD क्या होती है? Now, आपको पता है RD क्या होती है? So, if you were in your 30s and 40s, the first investment you structurally did was probably an RD, a post office savings certificate. When we ask the people in their 20s, we are lucky if they say SIP and not FNO, by the way. So that change is real. But in this market, ये जो इधर उधर की बात है, इसमें 10-15% फ्रॉथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो ये 30 का नंबर 27 हो सकता है, 28 हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है. दैट इज पार्ट ऑफ मार्केट ग्रोथ, और उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब होगा तो आप थोड़ा सेंसेशनलिज्म करेंगे, उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए. देयर इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड देयर इज 10% इधर उधर जो होता रहेगा. See, I think 1 year return here also is a big thing. Actually, क्या है कि people are consistently doing SIP, installments are going on, right? But क्या होता है जब 12, 15, 18 મહિના होता है, એક બંદા SIP उसकी लगती जा रही है અને 12-18 મહિના પછી એટલે 18 મહિનામાં 18,000 રૂપિયા લાગી ગયા અને એની વેલ્યુ 15,000 દેખાય, તો થોડા વખતમાં નર્વસનેસ આવવા માંડે કે યાર હું તો SIP કરું છું, બટ યુ નો અભી થોડા રૂકતે हैं. That can happen. But ultimately the trend is much on a, it's a sustainable trend. So, in between you mentioned about Donald Trump. So I think I'll use that to move it forward, like in terms of biases. अभी क्या हो रहा है, सब लोग ट्विटर देख के भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या रिडीम कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है. See, I'll give you a practical example. Wherever I go, when I travel a lot, so wherever I go, somebody says there is an investor meet, then at the end the people ask, what do you think about tariff, what do you think about H1B, what do you think about pharma industry. So બધા લોકોનું ધ્યાન જીઓપોલિટિક્સ પર જાય છે. હવે જસ્ટ ટેક અ એક્ઝામ્પલ કે અત્યારે બધા લોકો પીએચડી કરે છે ઇન્ડિયા યુએસ પર અને ટ્રેડ પર ને ટેરિફ પર ને એ બધા પર. કરેક્ટ, એવરીબડી ઇઝ ડુઇંગ પીએચડી. તમે આપણે પાછલા વર્ષે મળ્યા હોત ને તો બધા લોકો કોલિશન પોલિટિક્સ પર પીએચડી કરતા હતા. એની પહેલાં આપણે મળ્યા હોત તો તમને કોઈ કહેત કે સિલિકોન વેલી બેંક કેટલી મોટી બેંક છે ને જેપી મોર્ગને લઈ લીધી એટલે આપણે બચી ગયા, નહીં તો લેમન ક્રાઇસિસ થઈ જાત.
So every year people are doing PhD on different things. So current topic of PhD is, let us say, US and geopolitics. I will take an example, just as an example, if we ask anybody, when was the worst of India and US relationships? When was it at the worst point? When was it at the nadir? Like absolute horrendous relationships, India and US. Must be 71, 72. तो 71-72 में रिचर्ड निक्सन वॉज यूएस प्रेसिडेंट, हेनरी किसिंजर वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिसेस गांधी वॉज अवर प्राइम मिनिस्टर, एंड देर इज डॉक्यूमेंट विच सेज दैट बिहाइंड हर बैक बट मिस्टर निक्सन इवन अब्यूज्ड हर, राइट? एंड यू नो एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस, बट हाउ व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दिस? आपको कब मालूम पड़ा कि इतना खराब था? अभी बे ऑफ बंगाल में शिप भेजा था, मेरे को मत बोलना, बिकॉज मोस्ट वर नॉट इवन बॉर्न. हाँ, तो आपको कब मालूम पड़ा कि मिस्टर निक्सन वाज अब्यूजिव टुवर्ड्स मिसेस गांधी? कभी मालूम पड़ा? Some documents got declassified after 50 years, then you read about it and you realize, oh my God, pathetic. Correct? तो 50 साल पहले क्या था? चार दीवारी में जो बात होता था ना, आपको मालूम नहीं है. अभी क्या हो रहा है? चार दीवारी कांच का है, उसके अंदर दरवाजा भी है, खिड़की भी है, और वो दरवाजा खिड़की का भी जरूरत नहीं है. जो अंदर बैठा है ना, वही ट्वीट कर रहा है आपको कि तो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा करेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा. Our entire college life, 1995 WTO was formed. Our entire school and college life, these trade and tariff negotiations were going on. पूछो कितना लोग को मालूम है? तभी भी यूएस बोलता था कि हम लोग को जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड भेजने का है, तुमको एग्रीकल्चर सेक्टर खोलना पड़ेगा. वो तभी भी बोल रहा था. अभी क्या होएगा? एक ट्वीट देख के आपने 2 करोड़ रुपए डाला 2020 में, तो उसका वैल्यू आज 4 करोड़ के ऊपर है. एक ट्वीट देख के आप 4 करोड़ का पोर्टफोलियो बेच देंगे, आपको 2 करोड़ का कैपिटल गेन आएगा, 28 लाख रुपए आपका टैक्स लग जाएगा. वो अगले हफ्ते फिर से ट्वीट करेगा, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. अगले दिन, अगले घंटे. अभी क्या करने का है? So see, why I'm saying the bias is, you know that we don't realize what is noise. There is just so much noise. Correct? Availability bias है. Availability bias है. इतना information है, तो लगता है सब information valuable है. That is the thing, you know, which we should keep in mind. It's like very, very high level. आप किसी को बोलेंगे ना कि इंडिया का लिबरलाइजेशन से 32 साल से 14% कंपाउंड रेट, तो सेंसेक्स ही बढ़ा है. हर 4-5 साल में सेंसेक्स पैसा डबल करता है. लेकिन हर साल अलग अलग टॉपिक का पीएचडी करने के बाद वो हुआ एक्चुअली, राइट? अभी हम लोग इधर बैठे हैं तो आप यूएस का बात कर रहे हैं. अगर 1 साल बाद जीत भाई हमको बुलाएंगे, भद्रेश भाई 1 साल बाद बुलाएंगे, तो अलग टॉपिक पे पीएचडी चल रहा होगा. लेकिन मार्केट तो जो करने वाला है वही करेगा. So this is a big issue. People are really, people actually look at the Twitter and ask us, "Su karwanu?" PhD करना है तो एजुकेशन में करिए. ये ट्विटर पे फॉलो करके इन्वेस्टिंग डिसीजंस ना ले. राधिका, योर बायस, अदर बायस दैट हैज कम टू योर माइंड. तो बात एक्चुअली कैरी ओवर करनी चाहिए, Sure, sure. there is a very strong in this day and age of Twitter creation of narrative, जो पहले नहीं होता था. पहले NAVs used to come out once a day, annual reports used to come out once a year, influencer बात नहीं करते थे. अब क्या हो गया है? नैरेटिव ड्रिवन इन्वेस्टिंग बहुत हो गई है. अच्छा, तो H1B आ गया, IT कंपनीज खत्म हो गई. नाउ वेरी फ्यू पीपल विल सिट एंड डू द एनालिसिस कि इसका IT पे इम्पैक्ट शायद 3% का है, इंडियन IT पे. ऐसा दूसरा नैरेटिव आपने वो शार्क शब्द का इस्तेमाल किया, फैला है अनलिस्टेड मार्केट में, जो कि मुझे लगता है आज का सबसे ज्यादा फ्रॉथी मार्केट है. सो देयर इज अ बिलीफ कि कोई स्टॉक अनलिस्टेड है तो बढ़ता ही जाएगा, पता नहीं क्यों बढ़ता जाएगा. और जब वो कंपनी जाके लिस्ट करेगी, क्योंकि वो अनलिस्टेड से लिस्टेड में जा रही है, लिस्टिंग प्राइस अनलिस्टेड से ज्यादा ही होगी. अभी क्यों होगी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि जो लिस्टिंग है एक्चुअली वो कोई चेंज नहीं है कंपनी में, वो सिर्फ उसकी लाइफ में एक इवेंट है. उसके प्राइवेट शेयर होल्डर्स से अब पब्लिक शेयर होल्डर होने हैं. NSE जैसी कंपनी में तो एनीवे इट्स हाफ अ पब्लिक कंपनी, इट हैज मोर देन 2 लाख शेयर होल्डर्स. बट इफ वन NBFC इज ट्रेडिंग एट 3 times बुक इन पब्लिक मार्केट, उसका क्या हक क्या बनता है टू ट्रेड एट 8 times बुक इन अनलिस्टेड मार्केट, जस्ट बिकॉज वो मार्केट अनलिस्टेड है. सो वेदर इट इज इन लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये जो नैरेटिव को निकाल रहा है. एक और नया है हमारे यहाँ, आशीष, नया नैरेटिव बन रहा है AI ड्रिवन इन्वेस्टिंग का. अभी कर क्या रहा है AI इन्वेस्टिंग में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेग्रीगेट
what is narrative and actually what is fact. We'll throw the floor open for questions, but ये बात को लेते हुए एक just keep one thing in mind, everybody out here, that जो private market है ना वो 1990s का small cap है, और आप ये बात मान लीजिए because illiquid है, information sketchy है, पूरी availability नहीं है, और आधे लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरा नेबर भी इन्वेस्ट कर रहा है. आप प्लीज संभालिए इन द प्राइवेट मार्केट्स, बिकॉज 3 या 4 इंस्टेंसेस हो गए हैं 2025 में जहां पे मार्की कंपनी प्राइवेट मार्केट में बहुत ऊपर के प्राइस पे थी जब लिस्टिंग हुई, या 20, 30, 40, 50% डिस्काउंट पे हुई, और वो पैसा शायद आपका 1 साल तक वापस नहीं आएगा, और आपने शायद इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले किया था. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल इफ यू आर लुकिंग एट द प्राइवेट मार्केट्स. It's a very important bias, Radhika, that you pointed out. I will change your quote. मैंने एक quote सुना. This was 1 year ago when equity markets returns look better. So I was telling an investor कि आप portfolio बना रहे हैं तो थोड़ा fixed income भी देख लीजिए, बड़ी logical. तो उसने मेरे से कहा, मैडम, large cap is the new fixed income. Private market is the new equity. So this was what. But I genuinely agree, and I don't think कि लोग private market में इसलिए invest कर रहे हैं क्योंकि उनका neighbor नहीं invest कर रहा. Trust me, that's happening. No, Trust me, that's happening. Listen, private market में लोग इसलिए invest कर रहे हैं क्योंकि उनका driver private market में नहीं invest कर पा रहा. Because SIP तो आपका house help भी करता है, SIP तो आपका driver भी करता है. And when you become rich, as I said, you don't want to eat dal chawal. You have an avocado toast tendency. You don't want to eat dhokla, right? You have to eat something more expensive, and so it is this. Everybody wants to be a shark of some sort, and that is private market. So just before I throw the floor open questions, rarely do I disagree with you, but here I disagree with you that driver SIP करता है, मेरा neighbor जो equities मैं करता था वो अभी equities भी करने लगा है, और क्योंकि वो private market करता है तो मुझे भी private market. Okay, audience questions please. Yes, the gentleman at the middle, if you can have the first mic to him. We're not seeing ladies ask questions. There are 3 or 4 lovely women out here. I would love to hear a question from you as well, please. Yes. हाँ, आएंगे. आपके बाद, अच्छा, मैंने आपको पहली बार देखा है सर. कोई बात नहीं, कोई बायस नहीं है. प्लीज सेकंड क्वेश्चन इनको दे दीजिए, भले किसी और को भी पूछना हो, फर्क नहीं पड़ता है. सेकंड क्वेश्चन ये पूछेंगे. But yeah. Can we have the mic to him? Or you can just shout out, not a problem. But you have a young voice, please shout it out. Not tax efficient. So fixed income is not tax efficient. So I think, and I both of you spoke about that. So if you both can give your perspective, thank you. I will give you a very boring Indian woman's perspective that I think Ashish will agree with. I think ये जो chase है ना, people suck at timing. गोल्ड कब करना है, चाइना कब करना है, इक्विटी कब करना है. देयर आर सम वेरी स्मार्ट पीपल सिटिंग इन द फ्रंट रो हु आर वेरी गुड एट टाइमिंग, बट 90% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से सक एट टाइमिंग. हमारे हिंदुस्तान में एक चीज़ है जिसको हम थाली कहते हैं. आपकी गुजराती थाली भी बहुत मशहूर है. थाली सदियों से चलती आ रही है, और थाली महाराष्ट्र में भी चलती है, और साउथ में भी चलती है, और उड़ीसा में भी चलती है, और आपके गुजरात में भी चलती है, और मेरे यूपी में भी चलती है. थाली का क्या मतलब है? उसमें गोल्ड भी होना चाहिए, उसमें इक्विटी भी होना चाहिए, उसमें फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए. हम थाली को अपनी भाषा में मल्टी एसेट फंड कहते हैं. तो ये एक हिंदुस्तानी लड़की का बड़ा साधारण सजाव है. फॉर 90% ऑफ पीपल थाली वर्क्स फार बेटर देन टाइमिंग, whether I should be on a keto diet now or a fat-free diet now or on whatever diets are fashionable, or watermelon diet right now. So, I think that she already said that I'll agree with her, so I'm agreeing with her. But 2 things I'll tell you. आपको क्या लगता है आजकल आपको बच्चा देखिए क्या होता है जब बच्चा बोलता है ना कि ये तो चलेगा नहीं, खत्म हो गया, जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ना, वो भी आपको बोल देगा कि ये सबसे गया गुजरा चीज है. ऐसा कौन सा चीज है? अभी मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ द सेकेंड थिंग इज you should ideally be in a diversified portfolio, because ये जो आप बोल रहे हैं, जो हम भी बता रहे हैं, वो never ending chase है ना. It's a never ending chase, correct? So it's always better that your portfolio is
आप अभी क्रिकेट सी लोग मार्केट की बहुत चिंता करते हैं, वो कितना गलत चीज़ है मैं आपको बताता हूँ. I'll tell you something very funny which I find, maybe because it's like a bias or it's like focusing on wrong things. And I know we are in Q&A, I'll be very quick, sorry. लोग मार्केट का बहुत चिंता करते हैं, करेक्ट? अभी आप समझो एक चीज़, हम लोग यहाँ पे ये थाली का एग्जाम्पल बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग थाली मंगाते हैं, समझो राइस होता है, राइस के जगह पे मैं अचार रख दूँ और अचार के जगह पे मैं राइस रख दूँ उसी क्वांटिटी में, तो राइस के जितना अचार मैं खा लेता हूँ और अचार के जितना मैं राइस खाता हूँ, फिर मैं आके आपको पूछता हूँ कि बताओ कल क्या होएगा, तो बोलेगा, तो आप क्या बोलोगे कि ना वडोदरा में पानी में तो अमृत छेका ही नहीं था तुमने. बोलेगा भाई तू ये देख, तू खाया क्या है, हमको क्या पूछ रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग, पीपल्स पोर्टफोलियोज आर कंप्लीटली ऑफ सेंटर. द मार्केट इज 65 to 70% लार्ज कैप. The market is 65 to 70% bank, IT, healthcare, consumer and capex. That is our market construct. People का portfolio में 70% small cap है, 70% defense, railway, infrastructure, PSU और manufacturing है, और फिर हम अपने को पूछ रहे हैं market में क्या होएगा. So people are running pickle and gulab jamun thalis. Yeah, so the point is that if your portfolio is playing in a if your portfolio is totally off center, totally out of whack with the averages or the base rates of the market, then any occurrence in the macro will definitely give you a beating. पक्का मार पड़ेगा. तो रिस्क मार्केट में नहीं होता है, रिस्क अपने पोर्टफोलियो में होता है. तो आपने जो बोला उसका जवाब तो सबने दे दिया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू दी पॉइंट दैट डोंट गो ओवर. इवन इफ यू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट विनर ना, that cannot be your be all and end all. Your portfolio still has to have some tethering and some anchoring with the base rates and the market averages. Thank you for the answer. The question to this gentleman, please. यार sorry, मैंने इनको promise किया second question वो पूछेंगे. I'll come to you, I promise. But second question उनको. I was the one who asked the ladies. लोगों को सब मालूम है, उनका सवाल नहीं है तो क्या करेगा. तो आप लोगों को कुछ ज्ञान ही दे देंगे वो. नीचे जाके. Hello. You told about that mutual funds and SIP, but not about stock. I believe in stock only, not in mutual fund and SIP. What would be the price of Edelweiss after a month or 2 months? Because I bought Edelweiss. Okay. सर एकदम सीधा ऊपर के लेवल पे काम करते सर. हैं, लेवल ये सब ड्राइवर पैसेंजर कोई फर्क नहीं पड़ता है. नहीं ये गंगा तो निकलेगी पहले ऊपर. Radhika, you are in this. Sir, I must commend you. I probably have done 2000 pieces of public speaking. मुझे आज तक स्टेज पे किसी ने निरुत्तर नहीं किया, वो काम आपने कर दिया. So congratulations. सर, मेरा डेजिग्नेशन इज राधिका गुप्ता, MD एंड CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड. ये फिलहाल एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, ना कि वाइट ओक है. एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की CEO मैं नहीं हूँ, तो मेरा इसका जवाब देने का कोई हक नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है. मे बी यू कैन आस्क हिरेन भाई और गोविंद भाई और वन ऑफ द स्मार्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स. मे बी दे विल टेल यू अबाउट एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज. एंड बाय द वे, बायस की बात है तो यहाँ एक बायस, 2 लोग जिनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से सैलरी मिलती है, वो म्यूचुअल फंड की बात करेंगे ना. उनको म्यूचुअल फंड सही है कहने के पैसे मिलते हैं, तो अपना भी थोड़ा बायस बोल रहा है ना. No, but I must admit, सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है कहने के पैसे नहीं मिल रहे हैं. You guys are managing some serious investor wealth and growing it year after year. So I'm guessing उसके पैसे मिल रहे हैं, and we are all thankful for that. Like I said, मेरी SIP आपके दोनों के funds में है. Okay, the gentleman in the white shirt here. Good morning. Myself, Viral Ashar. I am a mutual fund investor and a distributor, so I firmly believe in mutual fund. So, मैम आपने बोला जैसे कि हर्ड मेंटालिटी है, लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देख के लोग पैसा डालते हैं, तो हम एज एन AMC मैन्युफैक्चरर और हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ही ज्यादा फंड लॉन्च करके उनको कंफ्यूज कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. रादर देन सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट्स, क्या हम उनको ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं दे सकते कि जिसमें हर एक, जैसे आपने मल्टी एसेट बोला, लेकिन उसमें भी एसेट्स हम चेंज कर सके बियॉन्ड द मैंडेट लिमिट.
सिर्फ 10% गोल्ड के बदले हम 50-60% गोल्ड कर दे whenever the time अच्छा हो वो asset class के लिए, and at the same time हम momentum funds भी launch कर रहे हैं, तो ये दोनों तो contradiction है. You want to take the difficult question or I can? Or both of us can? Whatever you नहीं, say. दोनों AMC से जानना दोनों चाहूंगा. से चलो मैं Jeet, how much time do we have So for actually, this session now? to Huh? Okay, so You we'll are have to do start quick, another. quick answers. Yeah. quick 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 answers. two things. पिछले 10-12 साल में मेरे को 2012 के आंकड़े याद है. 2012 में इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 1,70,000 करोड़ था एंड टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ है. अभी वो 1,70,000 है ना, वो 50 लाख हो गया है, और जो 7 लाख है टोटल वो 75 लाख हो गया है. So the point is that no industry can grow 20 times without more products and more providers of products, right? So number of products is increasing. Second important point is that we do products where we think people can make money, but all products are not. क्योंकि क्या है, जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स बढ़ते हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट और सारे प्रोवाइडर सारे कस्टमर के लिए रेलिवेंट नहीं है. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग इज दैट what we try to do actually, at least I try to do, is to launch products which are counter cyclical in nature. जो गर्म है, जो तेजी में है, वो हम नहीं लॉन्च करते हैं, right? So for example, last year we were launching healthcare fund and digital fund. Correct? That is deliberate. Last year we were launching a private sector banking fund. That is deliberate. She explained 3 years back, we launched 3 years back a multi-asset fund. That time 3 years, 2.5 साल पहले था, तभी 25% गोल्ड था उसमें. अभी धीमे धीमे उसका वेटेज कम हो रहा है और समझो रीट और इन्वेट का वेटेज बढ़ रहा है. So we are trying our best to be counter cyclical, but I agree with you that there are some times that there is momentum chasing also happening. So as a investor, दो चीज ध्यान में रखिए. आपके लिए क्या रेलेवेंट है उस पर फोकस करिए. सब प्रोडक्ट तो आप नहीं खरीदते हैं. और दूसरा चीज, जो सब कर रहे हैं वो मत करिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So, मैं बहुत क्विक आंसर दूंगी. फर्स्टली तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ ये पैकेज सॉल्यूशंस में. लोगों को लगता है ये क्या है, गोल्ड और इक्विटी ये सब पैकेज कर लिया, गोल्ड एंड सिल्वर पैकेज कर लिया. मुझे लगता है लोगों को पैकेज्ड प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बना के दो, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज सोच विचार करने का वो निकल जाता है. नाउ जहाँ तक इतने सारे प्रोडक्ट्स की बात है, आई टेल यू आवर पॉइंट ऑफ व्यू. हिंदुस्तान एक बहुत डाइवर्स कंट्री है. यहाँ आपके 5 करोड़ इन्वेस्टर्स में से ऐसे हैं जो पहली बार 100 रुपए की SIP कर रहे हैं, और ऐसे हैं जिनका 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जो अपने पोर्टफोलियोज ग्लोबल काउंटर पार्ट से कंपेयर करते हैं. टुडे अंडर वन ताज होटल्स यू लॉन्च पैलेसेस एंड यू लॉन्च जिंजर. अंडर वन HUL आप इतने सारे SKUs लॉन्च करते हो, क्योंकि एक्चुअली हिंदुस्तान इज नॉट फिजी और डेनमार्क. देयर इज नो एवरेज इंडियन. तो हम भी केटर करते हैं. आपको तो इस बात से खुशी होनी चाहिए, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं. अगर एक म्यूचुअल फंड और एक कैटेगरी हम चलाते तो कोई आपके पास आता क्यों? अब इतनी वैरायटी है, इतने रेस्टोरेंट्स हैं मार्केट में, तो न्यूट्रिशनिस्ट का तो काम बनता है, आपको तो खुश होना चाहिए. Okay, one last question. We are out of time completely. Short question, please introduce yourself. हेलो. हाँ, तो म्यूचुअल फंड बायर्स की बात चल रही है, तो जियो ब्लैक रॉक अभी जो न्यू फंड्स लेके आ रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा आप दोनों से ओवरव्यू चाहिए कि जैसे हमने देखा कि 2016 के आसपास जैसे 4G एंटर किया तो जियो ने बाकी सारी कंपनीज को तो गायब ही कर दिया. तो यहाँ कंपटीशन के बिहाफ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि जियो और ब्लैक रॉक के आने से मार्केट में SIP के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या बायस क्रिएट होंगे? थैंक यू. ये आंसर एक्चुअली में आई थिंक मुझे देना चाहिए, ना कि इन लोगों को. सर आपकी एक कंपनी होगी XYZ लिमिटेड. मैं अगर आपको बोलूं कि आपके 2 कंपटीशन आ रहे हैं तो आपके धंधे का क्या होगा, तो ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा इन अ पब्लिक फोरम, राइट? पर से. बट ऑल आई वुड से इज दैट द कॉमन बिलीफ इज दैट कि अगर कोई अग्रेसिव प्राइस कॉम्पिटिटर आ रहा है जो अग्रेशन ला सकता है मार्केट में, तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा ही होगा. तो अगर हम यही समझ के चलें कि नेक्स्ट 5 years में जो भी मूव्स हो रहे हैं कंपटीशन के थ्रू या रेगुलेटर के थ्रू या AMCs अपने आप कर रहे हो, इट विल ऑल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स. देन आई थिंक दैट्स अ गुड विक्ट्री फॉर एवरीबडी. सो आई थिंक लेट्स probably leave it at that. Yeah, let's leave it at that. Okay. We'll have to wrap it up here, but Ashish, Radhika, thank you so much. This was lovely. This is lovely. Thank you so very much.